صبح جب نماز کے لیے آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر، یہ پڑھ کر کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے کچھ ایٹمی سائنسدان اور کمانڈر ان چیف کو شہید کر دیا گیا، اسرائیل اور امریکہ کے اس بےایمانہ اقدام کے اوپر ہم کنڈیم کرتے ہیں اور یونائٹڈ نیشن سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعی ایفیکٹو پلیٹ فارم ہے تو اپنا اثر رسوخ سے اس پہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس بجٹ کے بنانے والے جو IMF کے ساتھ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے انہی رجسٹرڈ بزنس مینز کو بار بار نچوڑیں گے، اور اس وقت اپنا عزت نفس بچانے کے لیے ہمیں ساروں کو یونائٹڈ ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے کہا 17 کو لاہور میں ایک بڑا کنونشن ہو رہا ہے ملک گیر، اس میں ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان نیوز کے ساتھ میں ہوں غلام عباس اور موجود ہوں اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں، اور آج یہاں پر جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس پر باقاعدہ سب نے اپنی رائے دی ہے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلطان گروپس آف انڈسٹریز کے CEO جناب احتشام صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی سر، کیا ریویو دیں گے آپ آج جو کچھ ہوا اور جو بجٹ نے جو حال کر دیا ہے جس پر آج سارے تاجر چیخے ہیں، ذرا اس پہ کچھ روشن ڈالیے گا۔ سر بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بجٹ تو کبھی بھی فرینڈلی نہیں تھا، بٹ یہ ہے کہ چیزوں کو گھما پھرا کے دکھایا گیا ہے۔ سو آئی جسٹ ریکویسٹ ٹو دا کرنٹ گورنمنٹ کہ بجٹ کو عوام کے لیے فرینڈلی بنائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ آسانی سے بزنس کر سکیں اور اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلے، ادروائز تو چیزیں بہت سٹک ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ فردر خرابی کی طرف جائیں گی۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں شمائلہ بزنس اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں، اور اب یہ اپنا ریویو دیں گی اباؤٹ بجٹ۔ آج جس طرح لوگوں نے یہاں باقاعدہ برہمی کا مظاہرہ کیا ہے اور تقریباً کنڈیم بھی کیا ہے کہ جی یہ بجٹ تھرو آؤٹ بالکل غلط تھا، اور اس میں خصوصی طور پہ آج پریزیڈنٹ صاحب نے اور باقی ممبران نے یہ کہا کہ ایک 17ویں گریڈ کا FBR کا افسر آئے گا اور کسی بھی بڑے کو ہاتھ ڈال کے لے جائے گا، اور وہ تو ہاتھ ڈال کے لے جائے گا لیکن جب وہ وہاں سے بے گناہ بری ہوگا تو کیا اس افسر کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو کہ اس کو بے گناہ لے کر گیا تھا؟ جی شمائلہ، کیا بولیں گی آپ؟ جی یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے پورے پاکستان میں ایسی چیزیں ہو چکی ہیں کہ بلڈنگ بن گئی، بنتے وقت نہیں آئے، اس کو استعمال ہونا شروع ہو گیا، بعد میں کہا جی یہ غلط بنی، اس کو گرا دو۔ آپ فائن کر لیں، ریونیو جنریٹ کر لیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا ہی گرا دیں۔ آپ پورے 2 سال جب وہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تب تو سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر یہ جو FBR کو جتنی چھوٹ دے دی ہے، جتنا بے لگام آپ کہتے ہیں اس کو کر دیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یہ ہر طرح سے ہمارے بزنسز کو آ کے بند بھی کر سکتے ہیں، سامان اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں، تو یہ تو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ تو رشوت کا اور کرپشن کا ایک بازار گرم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور اس کو ہم باقاعدہ کنڈیم کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ایک پریس کانفرنس اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں منعقد کی گئی۔ پریزیڈنٹ صاحب ناصر قریشی صاحب نے اسپیشلی تمام ایگزیکٹو بورڈ نے، تمام ہمارے ممبران نے جو پورے اسلام آباد کے بزنس سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس ایک تو ٹیکس کے اوپر ہم لوگوں نے بات کی ہے، سولر پہ ہم نے بات کی ہے، اور خاص طور پہ جو FBR کو اتنی چھوٹ دینا، کیونکہ دیکھیں اگر بزنس ہی ہم نہیں کر سکیں گے تو پھر ملک کا پہیہ کیسے چلے گا؟ اچھا، جیسا آج پریزیڈنٹ صاحب نے کہا اور پوری کابینہ نے جو تاجر برادری ہے ان کے ساتھ لبیک کیا ہے کہ 17 تاریخ کو ہم لاہور میں ایک بہت بڑا سیمینار کرا رہے ہیں کہ جس میں حکومتی عناصر کو سوچنے پہ مجبور کر دیں گے کہ یہ ظلم کا بازار بند کرے۔ جی بالکل، اس سے پہلے کہ یہ غلط بل پاس ہو جائیں، دیکھیں مجھے افسوس تب ہوتا ہے جب کوئی ایسا بل ہوتا ہے جس میں مراد بڑھنی ہو MNA MPs کی، جن میں ان کی سیلریز بڑھنی ہو، تو وہ تو ساری پارٹیاں اپوزیشن سمیت سارے فوراً اس بل کو پاس کر دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ تاجر برادری کی بات آ جاتی ہے، مطلب ہماری چمڑی ادھیڑی جا رہی ہوتی ہے، ہم ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ریلیف نہیں مل رہا ہوتا، ہمیں کوئی ایک چپڑاسی بھی کھڑے ہو کے کسی دفتر کا جو ہے نا وہ باہر نکال سکتا ہے، ذلیل کر سکتا
सकता है, हम टैक्स भी पे कर रहे हैं। सब इदारे को चलाने के लिए, इस इदारे में आने के लिए भी हमें टैक्स पेयर होना है, तो फिर ही हम चैम्बर के मेंबर्स तो बनते इसका हैं। मतलब ये हुआ कि आप भी यही कह रही हैं कि आप हर चीज़ को हुकूमती जो इन्होंने बजट पेश किया है इसको कंडेम करते हैं आप? तमाम बजट को नहीं, लेकिन जो बिज़नेस को फ़रोग़ नहीं दे रहा, उन तमाम जो सेंक्शंस लगा रहे हैं, जो भी उन्होंने तजवीज़ात दी हैं, उनको मैं कंडेम करती हूँ। टैक्स को कंडेम करती हूँ। FBR के इस इतना ज़्यादा पावर कर देना, इम्पावर कर देने को बहुत कंडेम करते हैं हम लोग। सोलर सिस्टम को कंडेम करते हैं। मैं तो ई-कॉमर्स के ऊपर कंडेम करती हूँ। आपको यूथ से कोई बदला ले रहे हैं, बेचारी घर बैठी कमा रही है, आपने उनके ऊपर टैक्स डाल दिया। और सोलर के ऊपर स्पेशली अब तो मुकम्मल बात आ चुकी है कि बहुत ज़्यादा टैक्स डाला जा रहा है। भाई सोलर पे अभी ये बात सिर्फ डिस्कशन में आई है, तो आप ज़रा जाके सिर्फ सोलर पैनल की प्राइस चेक कर लीजिए कि क्या हो रही है। लोग और शमसी तवानाई जो है उसमें गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, कि अगर वो कोई बंदा सोलर पैनल लगाता है और मतलब कल को आप कहेंगे जी जनाजा भी नहीं उठ सकता कि ये बंदा नॉन फाइलर है, एलिजिबल फाइलर नहीं है। अच्छा जी, इसका जनाजा नहीं उठ सकता जनाब क्योंकि ये जी सोलर एनर्जी जो है ना, इसका टैक्स नहीं पे किया था। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ग्रीन क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम गाड़ियों की, हम चार्जेबल गाड़ियों के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है चीज़ों के लिए। अच्छा, क्या कहेंगी आप जो लाहौर में 17 तारीख को आप लोग करा रहे हैं इतना बड़ा सेमिनार, क्या एक्सपेक्टेशंस है कि पूरे मुल्क से ताजरान आएंगे? बिल पास होने से पहले ये एहतजाज इतना ज़रूर होना चाहिए पुरअमन तरीके से ताजरों का, ताकि इसके ऊपर बेहतरी लाई जा सके। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी, तो आइए इनसे भी बात करते हैं। आज जो इजलास हुआ यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सदर और नायब सदर दोनों मौजूद हैं, और इनसे पूछते हैं कि जो 17 तारीख को आप एक इजलास करा रहे हैं लाहौर में, उसके मुतालिक क्या है कि पूरे पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं आप कि ताजर बरादरी आएगी और अपना सिक्का मनवाएगी? आज हमारे पास जो इस्लामाबाद के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ट्रेड लीडर्स थे, वो सारे आए हुए थे। और 17 तारीख को अगर हमने लाहौर में कन्वेंशन रखा है तो लाहौर, फैसलाबाद, कराची और गुजरांवाला, गुजरात, ये तमाम लोग इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट से माला माल है, भरा हुआ है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह वो तमाम लोग आएंगे क्योंकि सब पे इफ़ेक्ट हो रहा है और सब ने अपना लाएमल बनाना है। और ये कन्वेंशन पाकिस्तान के जो लीडिंग बिजनेस लीडर्स हैं वो बुला रहे हैं और हम सब वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। और सर एक बात आखिरी में आपसे ये पूछूंगा कि आज जो ये बात की गई है, और ख़ास तौर पे आप भी कर रहे थे और बाकी लोग भी बैठे हुए थे जो इस वक्त मौजूद थे इस इजलास में, कि एक 17 ग्रेड का अफसर जो है किसी को भी FBR के हाथ डाल सकता है, बड़े से बड़े बंदे को, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तजलील है बिज़नेस कम्युनिटी की, और ये रिस्पेक्ट वो करते हैं, और ये तजलील है और ये तजलील को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नायब सदर भी मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जी सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, आज आप तशरीफ़ लेके आए। जिस तरह हमारे सदर साहब फरमा रहे थे कि अगर इसी तरह हमारे बिजनेस मैंस की तस्लील करनी है, तो मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि हम अपने शोरूम्स और शॉप्स वगैरह की फैक्ट्री की चाबियाँ जो हैं वो FBR में जमा करवा देते हैं और हम रोडों पे आ जाते हैं। और इंशाल्लाह अगर ये गवर्नमेंट इस पर नहीं मानी तो आने वाले दिनों में दम मस्त कलंदर होगा और ताजर रोडों पे होंगे और FBR वाले बाहर होंगे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जहांगीर मिन्हाज साहब, आइए इनसे बात करते हैं। देखिए जी, मसला ये है कि जो चैम्बर्स हैं ये लाजमी एक इनिशियल कंपोनेंट है हमारी हुकूमत के, और जो ताजर होता है ये बैकबोन होता है किसी माशरे का। अगर एक ताजर टैक्स पूरी तरह नहीं अदा कर रहा, पे नहीं कर रहा, अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा पाकिस्तान की इकानमी में, मुल्क की इकानमी में, तो उस पर क्वेश्चन उठते हैं, सवालात उठते हैं। लिहाजा इनकी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इनके अपने तफाज़ात थे वो ये थे कि FBR ज़ाहिर है वहाँ पे ऐसी पॉलिसी आ रही है कि जो लोग नॉन टैक्स पेयर हैं, टैक्स नहीं पे कर रहे, छोटे रिटेलर हैं, छोटे ताजर हैं, उनके लिए वो एक नई स्कीम लेके आए हैं कि जिससे ये अंदाज़ा हो सकेगा कि कौन बंदा टैक्स नहीं दे रहा 6 मंथ से, लास्ट 7 मंथ से, उसके लिए गिरफ्तारी का प्रोजेक्ट होगा। वो एक ऑप्शनल रखा गया जिस पे इन लोगों के तफाज़ात हैं कि हमारी गिरफ्तारी ना हो, हमें पहले हमारी बातें सुनी जाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे बिजली का मसला है, फ्यूल का मसला है, लेबर का मसला है, ज़ाहिर महंगाई एक अहम इशू है पाकिस्तान में बढ़ रही है, और उनके अपने तक ये तफाज़ात है कि हमें एतमाद में ले वज़ारत ख़ज़ाना, FBR में एतमाद में ले, ताकि हम उनको अपनी मजबूरियाँ बता सकें कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद एक टैक्स का ऐसा सिस्टम हो कि रज़ाकाराना तौर पर हम टैक्स दें जिससे मुल्क की इकानमी भी बूस्ट हो और हमें भी कोई खौफ व ख़तरा ना हो।
अच्छा सर, जो आज वहाँ एक मेन क्वेश्चन था जो कि प्रेसिडेंट साहब भी और बाकी भी तजारती जितने भी थे वो यही बोल रहे थे कि एक 17वें ग्रेड का FBR का जो अफसर है वो किसी को भी आके हाथ डाल सकता है, चाहे कितना बड़ा टाइकून हो। देखिए ना, वो मसला ही फिर वही है, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि 80 लाख रिटेलर है पाकिस्तान में जो कच्चा बिल देता है, जो FBR का बिल ही नहीं देता, जिसका पता ही नहीं है। जैसे ये ऑनलाइन की पहली दफ़ा बात हो रही है कि जब ऑनलाइन आप चीज़ें मंगा रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, या जैसे यहाँ पर बहुत सारे कॉल सेंटर खुले हुए हैं, तो उनकी कोई इकानमी का, उनकी जो बचत है, उनकी जो उनको जो आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं, फाइनेंस है, उसका कोई डाटा ही नहीं है। लिहाजा ये गवर्नमेंट ये करने जा रही है, जो ग्रेड 17 और 16 का जो अफसर होगा वो वहाँ पे उसको मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होंगे कि अगर मैं एक छोटा ताजर हूँ और मैं उसकी अपनी वो टैक्स पे नहीं कर रहा, मेरी इकॉनमी जो है, जो मेरा बैलेंस शीट है वो मैचअप नहीं हो रही, तो वो मुझे गिरफ़्तार कर सकता है। ये पाकिस्तान में इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे टैक्स ना देने का एक रुझान पनप रहा है, और जो ख़ुसूसन फिर मैं कहूँगा जो छोटे ताजर हैं, जो हमारे पास जो इकानमी में जिनका बड़ा रोल है, वो टैक्स नहीं दे रहे। ये लोग कहते हैं कि हुकूमत हमें कोई फैसिलिटी नहीं देती, हमें हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन हमारा सूबाई सब्जेक्ट है, हमारे बहुत सारी चीज़ें सूबों में चली गई हैं, अपनी तय कर रहे हैं, जैसे हमारा सोशल सिक्योरिटी है, मेडिसन का मसला है। तो ये इनके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत ये कहती है कि हमारे जो टारगेट हैं वो पूरे नहीं हो रहे, इस हवाले से वो एक स्कीम ला रहे हैं। क्लब के सदर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम भाईजान। सर सारी कार्रवाई देखी, इस पे आप क्या बोलेंगे? पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जो यहाँ बजट बनाया जाता है ना मुंतखब नुमाइंदे बनाते हैं, ना ही ताजरों से सिफारिशात पर अमल किया जाता है। यही बात कर रहे थे इस्लामाबाद चैम्बर के सदर कि हम जनवरी से अपनी सिफारिशात दे रहे हैं, एक भी शामिल नहीं की गई। और ये बजट तो खालिस्तान IMF की डायरेक्शन में बनाया गया है। जो बजट IMF की डायरेक्शन में बनाया गया हो तो वो हकीकी मानों में आवाम की तर्जुमानी नहीं करता। इसलिए ज़रूरत इसी अमर की है कि उनको अगर बजट बनाना है तो फिर अवामी नुमाइंदों को से पूछा जाए, लोगों से पूछा जाए, ताजरों से पूछा जाए, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी मुशावरत से बजट बनाया जाए, तो फिर मुल्क भी तरक्की करेगा, बजट में भी इजाफा होगा, टैक्सेस में इजाफा होगा, सारे मसाइल हल होंगे। और ये जो इन्होंने आज एक ऐलान किया है कि 17 तारीख तक का हम टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और वरना फिर हम 17 तारीख को पूरी तजारती जो जितने भी इनके बंदे हैं और इनकी अवाम है, ख़ास तौर पे तजारत से मुंसलिक, जो कि लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद के, इन सब को ये लाहौर में इकट्ठा कर रहे हैं और एक कन्वेंशन करेंगे। उस पर आप क्या बोलते हैं? जी ये ठीक है, ये तो उनका राइट बनता है कि हर किसी का राइट है, अगर कोई गलत उसमें चीज़ है तो वो उसके लिए निशानदेही भी करे, उस पॉइंट आउट करे, उसके साथ साथ उस हवाले से एहतजाज का भी हक़ महफूज रखता है। ये खालिस्तान सियासी और जमहूरी अमल है, उनका राइट बनता है। हुकूमत को भी चाहिए थी इससे पहले कि वो सड़कों पर आएँ, उनके इस अगर मुतालबा आप समझते हैं वाकई सही मुतालबा है कि भाई किसी आप टैक्स ऑफिसर जो ग्रेड 16 और 17 अफसर को आप ये अख्तियार दे दें बग़ैर किसी अदालती हुक्म के आप जाकर गिरफ़्तार कर लें, और उन लोगों को जो कि अरबों रुपए का, करोड़ रुपए का टैक्स दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही उनका मुतालबा है और इसकी हम हमायत करेंगे। उसके साथ साथ जो सोलर के ऊपर टैक्स लगाया है वो भी सरासर ज़्यादती, वो भी वापस ले जाए, उसको हम प्रेस क्लब की सतह पर भी उठाने का हमने फैसला किया। यानी जतोई साहब आप ये कह रहे हैं कि जो आज यहाँ इजलास हुआ है इससे आप पूरी तरह मुत्तफिक हैं। वैसे भी ताजिर बरादरी ये कह रही है कि इस बजट को 50% हम मानते हैं और 50% नहीं मानते और कंडेम करते हैं इस बजट को, और ये भी उन्होंने कहा है कि जितने बजट आते रहे ये उसके बराबर ही है, ना ऊपर है ना नीचे है, बल्कि इसमें ज़्यादतियाँ भी हैं। देखें ना, अगर हमने रेवेन्यू का टारगेट 1600 बिलियन रख दिया, 16 ट्रिलियन रखा है, तो इसका मतलब ये मुल्क से ही हासिल करेंगे ना, आपसे लेंगे, मुझसे लेंगे। हम ये सिर्फ 8-10 सालों के अंदर इतनी टारगेट जब चला गया है तो फिर साहब टैक्सेस में भी इजाफा हो रहा है, सब बाकी चीज़ों में हो रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है टैक्सेस को आप जो है ना उसकी गुंडागर्दी के ज़रिए टैक्सेस को आप लोगों के अंदर हरासा करके ना लें, बल्कि लोगों के अंदर एक शऊर बेदार करें, टैक्स के जो देने के जो मराइल हैं उसको आसान करें। टैक्स हर कोई दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इतना मुश्किल अमल बना दिया है। यही वजह है कि लोग उसे डरते हैं। खुद टैक्सेस के चोरी के जो इक़दाम हैं वो ख़ुद उनके अपने एहलकार अगर बताते हैं आप इस तरह करें तो इस तरह आपके टैक्स से बच सकते हैं, तो पहले तो वो कोई ईमानदार अफसरान को, ईमानदार एहलकारों को भर्ती करें जो कि मुल्क के साथ भी मुखलिस हो और उन अपने दीन भी बचाना चाहें, दुनिया भी बचाएँ, आखिरत भी बचाएँ, खौफ खुदा भी हो, वरना ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरत इसी बात है निज़ाम को बेहतर करें तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जी नाजरीन, तो अब जैसा कि आपने अभी तक की सारी सूरत-ए-हाल देखी हमारे जहान न्यूज़ के तवस्सुत से, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट पे बहस ख़त्म हुई, लोग जाने के लिए रवाना हुए। अब जो होगा बामुताबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो आए हुए यहाँ पे लोग बैठे हुए थे तजारती
उन सब की एक ही राय थी कि अगर हुकूमत इन हथकंडों से बाज ना आई तो फिर 17 तारीख को वो एक बहुत बड़ा कन्वेंशन कर रहे हैं लाहौर में। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।